everyone. So now the days have finally arrived when you are going to give your first board exams of class 10th ICSE. Okay, so first of all, please tell me how is your preparation going on, and please, I don't want any negative answer. Say confidently that yes Didi, my preparation is going very well, and be confident in yourself. Whatever you are doing is very very good. But today I am here to tell you about some important points of each and every subject that you cannot miss out with. And if you want to secure above 90% still in these 10 days, then please follow this hack. This video is really gonna be very helpful to all of you. So yeah, let's start the video. So first comes your English language. See, English language is a very very important subject. You cannot miss out with this, because in ICSE scoring good in English is very very important. English language, I want to give you a tip कि जैसे अगर आपके पास अब लिखने का टाइम नहीं हो उतना, कि आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो एक पैराग्राफ को लिख के, या फिर योर लेटर्स, योर नोटिस ईमेल, देन प्लीज टेक अ सैम्पल पेपर और ये PYQ, सी देयर सोल्यूशन, और जो उसमें जो भी ऐसे और लेटर राइटिंग दिए गए हैं उनको प्लीज आप रीड करिए, बिकॉज बाय रीडिंग दैट यू विल गेट अ गुड वोकैबुलरी कि हाउ यू कैन स्कोर गुड इन दिस. तो you will get a good vocabulary, and also at the end moment of time when it is very you can't miss out a single second of English language, then it will help you that yes, I remember the line, I know how to start the paragraph, I know how to end the paragraph. So please read this. Practice the questions in English language very very well, because by practicing it you can have an idea of how the questions are coming. And now second is your English literature. See, now English literature has changed, because in our time, in our batch, it was Merchant of Venice and Treasure Trove. So now it has completely changed. I guess in this year it is Julius Caesar. So I don't know anything about English literature, but everything that I want to say is that English pattern remains the same. So all I want to say is कि you should have the answer in mind, and you should focus on the key terms, keywords are very 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 important in your English literature. By that you are gonna lose your marks. Keep the answer short and sweet, but in that answer you have to apply maximum keywords that are given in your textbook. So please don't forget out with this point, and by this you can achieve full marks in English literature, because English literature is very easy subject. You can do it. So keep your focus on the key terms part. Third comes your Hindi literature. For Hindi literature you have to read the chapters very 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 well. Chapters आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कि ये डायलॉग किसने किससे बोला है, ये कहाँ का स्टोरी है, ये दीपदान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे जो अभी हमारा पेपर था, जैसे कि लेट मी जस्ट शो यू. लिटरेचर में हमारी साहित्य सागर चलती थी, कहानियों वाला सेक्शन और एकांकी संचय. तो उसमें मैंने क्या किया था कि मेरे पास भी ऐसा हुआ था कि हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हिंदी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट आई हैव टू सिक्योर गुड, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स एक्ट लाइक गेम चेंजर, सो आई हैव टू डू गुड. तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो अभी हमारा जो पेपर आया था 2023-2024 का जो पेपर आया था, जो हमारा बैच का पेपर था, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो जैसे हमारे में साहित्य सागर से क्वेश्चन आया था, अपना अपना भाग्य से, बड़े घर की बेटी से, और भीड़ में खोया आदमी, इन तीनों से हमारे में क्वेश्चन आया था. तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो इस बार का पेपर होने वाला है, जो 2024-2025 का जो पेपर होने वाला है, उसमें ये तीनों चैप्टर्स नहीं आए. इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, लाइक 99.9% तो चांसेस यही है कि ये नहीं आएंगे. ठीक है, तो आप इनको, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हिंदी में, तो इन चैप्टर्स को आप अभी लीव आउट कर सकते हो. और जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई वांट टू गाइड यू कि अभी इस चैप्टर में थोड़ा, इन तीनों चैप्टर्स में आप कम फोकस रख सकते हैं, बिकॉज बहुत पॉसिबिलिटी कि नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% की आएगा ही नहीं, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है. अगर आप अर्जेंट पढ़ रहे हो, क्विक रिविजन कर रहे हो, इनको आप निगलेक्ट कर सकते हो. ऐसे ही सेम आपके ये जो एकांकी संचय वाला है, तो इसमें हमारा संस्कार और भावना महाभारत की एक सांझ और सूखी डाली से आया था. तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ये भी ना आए, दीपदान आ जाए, और जो दूसरे आपका है ना वो आ जाए. तो प्लीज इसको ना एक दिमाग में रखिएगा.
नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में वही कहना चाहूंगी कि सैम्पल ज्यादा रीड करो, बहुत हेल्पफुल होता है और बाकी इतना टफ आता नहीं है उसका पेपर। आपका मैथ्स, तो मैथ्स में बेसिकली आप वो वाले चैप्टर करो जो कि मतलब काफी स्कोरिंग हो और आपको इजी लगते हो, वही करो। और पीवाईक्यूज लगाओ, बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखेंगे कि एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट होगा उसमें। तो स्पेसिमेन पेपर लगाइए और जो पीवाईक्यूज है उनको लगाइए और जो कुछ सिलेक्टेड इजी चैप्टर्स है ना उनको लगाइए। आप सभी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको यही करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस इसमें डेवलप करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में डेवलप करेंगे। अब इतना ही 10 डेज का टाइम बचा है तो हम लोग कैसे इतना करेंगे। तो मेरी बात मानिए, जिसको चैप्टर जो आपको लगता हो बहुत इजी हो, बहुत स्कोरिंग हो, उन पे अपना ज्यादा फोकस करिए। आपके स्कूल में बताया गया होगा कि ये चैप्टर थोड़ा इजी है, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके हिसाब से आप करिए। अगर अभी तक आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी, दैट्स आई एम टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एवरीवन। और पीवाईक्यूज, हाँ ऑब्वियसली पीवाईक्यूज यू हैव टू डू, पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी इस बुक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए एंड एवरी रे डायग्राम प्रैक्टिस करिए। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक टैकल के डायग्राम्स, लिवर्स के क्लासिफिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कुछ लॉ जैसे ओम लॉ और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रिसाइज डेफिनेशंस पे फोकस करिए। पीवाईक्यूज लगाते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे बहुत फोकस रखिए। सारे डायग्राम्स, मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो बनाई थी, उस पर प्लीज सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स उतने टफ नहीं आते जहां तक आई नोटिस, सो यू कैन जस्ट यूज अ बुक एंड प्लस पीवाईक्यूज। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन पीवाईक्यू। Next comes chemistry. Chemistry is very easy, I guess, of class 10, so you need not stress about that. And basically in chemistry, again, I have to say that you have to solve PYQs because ये 4 chapters हैं आपके HCl, ammonia and नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली इनका पीवाईक्यू से बहुत जुड़ा हुआ पार्ट रहता है, तो पीवाईक्यूज इनके अच्छे से करिए। एंड केमिस्ट्री में आप सिर्फ क्वेश्चन से लगाते रहेंगे, उससे भी आपका काफी कवर हो जाना है, बिकॉज उतना थ्योरी वाला पार्ट आई डोंट लाइक सी इन द केमिस्ट्री। सो बेसिकली द रिएक्शन पार्ट्स, अलॉय पार्ट, अलॉयज, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टडी ऑफ 4 कंपाउंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना कुछ ऐसे चैप्टर है लाइक जो आपको करने ही होंगे, लाइक these are very important topic and chemistry is really very easy। में ज्यादातर you just practice your PYQs and all, PYQs enough होते हैं केमिस्ट्री। तो मैं बताया आपको HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये 2 इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योर IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड उसके सारे रिएक्शंस, एल्केन, एल्किन्स, एल्काइंस के सारे रिएक्शंस सब कुछ, और स्ट्रक्चरल डायग्राम सब, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप केमिस्ट्री मिस आउट नहीं कर सकते। बायो, तो बायो में मैंने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो बनाई थी, उनको प्लीज अच्छे से करिएगा। और स्पेशली बायो में आपको डेफिनेशंस में बहुत 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 ज्यादा प्रिसाइज रहना पड़ेगा। डेफिनेशंस बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज केमिस्ट्री, बायो दोनों में it helps very much. I cannot say how much time it helps. तो please practice them. Biology भी I guess it is decent of class 10, so you don't need to stress about it. Let me just go to the syllabus and just inform you about if anything. It's genetics है, तो genetics जो है उसमें सारे वो जो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रक्चर्स, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लाइक जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन और फिर जो आपका साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये पक्का आएगा, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यू हैव टू रीड एवरीथिंग कि एसेंट ऑफ सैप क्या था और मोड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, कंडक्शन, ये सब कुछ, और वो जो था ना आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ऐसी ट्रांसपिरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोटोसिंथेसिस में भी कुछ रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसे मतलब पूरा मेन पॉइंट्स को वही मैं कह रही हूँ ना, यू हैव टू रीड द पीवाईक्यूज, बिकॉज हाउ कैन आई जस्ट टेल दिस, आई एम जस्ट टेलिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप इन सब चैप्टर्स की पीवाईक्यूज भी करके चले जाओगे ना, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। प्लीज हैव बिलीव इन दिस।
हिस्ट्री में जो मैंने चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हैं कुछ, वो प्लीज उनको देखना। कुछ नहीं पढ़ा है सिर्फ वही वीडियो से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके तो और जो मैं नहीं बनाया वो मैं आगे बनाऊंगी फ्यूचर में ऑब्वियसली, बट जो मैं नहीं बनाया उसमें भी आप पीवाईक्यूज के ही बेसिस में करो, बिकॉज मैंने आपको जो भी बताया है ना वो पीवाईक्यू में जरूर आया होगा। प्लीज क्रॉस चेक पीवाईक्यूज। ज्योग्राफी में भी ऐसी चीज है, ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स इन टोटल होते हैं, 9 क्वेश्चंस इन टोटल आएंगे आपके सेक्शन बी में, इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आई गेस 5 चैप्टर्स को जो आपको करना है उन्हीं 5 चैप्टर्स में अपना फोकस रखो कि मैं कौन सा 5 अटेम्प्ट करूंगा। एंड me just tell you the chapters which I picked and which are very very easy, so you can also think of them. तो क्लाइमेट कर लेना, इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, क्लाइमेट हो गया। और वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छा चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज कर लेना, ये 2 हो गए आपके। फिर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी चैप्टर है, 3 हो गया। फिर 4th हो गया आपका वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको इंक्लूड और करना पड़ेगा, वो आप कर लो अपना सॉइल रिसोर्सेज या नेचुरल वेजिटेशन में से कोई एक, सॉइल या नेचुरल में से कोई एक, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब आपके एमसीक्यूज टाइप में आएंगे, तो एमसीक्यूज के लिए आप जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनके एमसीक्यूज लगा लो, पीवाईक्यूज जो एमसीक्यूज होते हैं उनको लगा लो, सफिशिएंट है। और फिर मैप की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी रखना, टोपोशीट की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी रखना। टोपोशीट में यू हैव टू नो कि 4 ग्रिड रेफरेंस क्या होता है, सेटलमेंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर, you have to keep very good commands on your programs। दीदी 10 दिन बच्चे हैं, हम प्रोग्राम से कैसे कमांड लाए, आई नो यू कांट, लेकिन जैसे 4 टाइप के प्रोग्राम होते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये 4 इनको रट लेना अच्छे तरीके से, इनको कर लेना, बिकॉज ये चारों तो आएंगे किसी किसी फॉर्म में, इन चारों से कोई एक तो आएगा ही आएगा। और 1-2 लाइक एरे का कुछ सीख लो। So yeah, that's it for today's video. I hope this video helps you a lot. Please, if you have any doubts, please comment down, and please don't stress about your exams. Be confident that you had studied very well and you will be able to ace the examination. So yeah, take care. Thank you so much for watching this video till the end. Okay, bye bye guys. Wish you all the very best for your exams.